معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ منچ پر موجود محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سابقہ رکن پارلیمان و صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار، ذمہ داران مجلس اتحاد المسلمین، میرے رفقا، عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل شام میں اورنگ آباد کے بلدیہ کے انتخابات کی انتخابی مہم کا اختتام ہوگا اور یہ آخری جلسہ ہے رات کا۔ میں آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا جذبہ اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو جو مجلس اتحاد المسلمین میں ہے اللہ نہ صرف آپ میں بلکہ آپ کی نسلوں میں بھی اس کو منتقل کرے۔ آپ لوگوں کی سیاسی سوچ کو میں سلام کرتا ہوں، بزرگوں کی رہبری کو کی میں عزت کرتا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی میں قدر کرتا ہوں، نوجوانوں کے جذبے کو میں اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھیے، جس پربھاگ میں مجلس کے 4 امیدوار ہیں یا 3 ہے یا 2 ہے یا 1 ہے، خاص طور سے جہاں پر 4 ہیں وہاں آپ کو 4 ووٹ ڈالنا ہے۔ نہیں ان کو 1 دوں گا وہاں 1 کروں گا تو اس سے پارٹی کا نقصان ہوگا۔ آپ امیدوار کو مت دیکھیے، آپ پارٹی کو ووٹ دیتے آئے ہیں اور آپ نے اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت اور قربانیوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بھی کیا اور مضبوط بھی کیا۔ تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ امیدواروں کو دیکھے بغیر جہاں پر مشین میں پارٹی کا نشان ہوگا پتنگ کا وہاں پر آپ ووٹ ڈالیے، اور اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں 2 یہاں دو 2 وہاں دے دو، 1 یہاں دو 3 وہاں دے دو، یاد رکھیے اس سے آپ کا اتحاد کمزور ہوگا، اور ہمارے پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کو اگر پوری یقینی بنانا ہے تو جہاں پر مشین میں پتنگ کا نشان ہوگا 4 مشین ہوں گی تو 4 بار آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔ دوسری اہم گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج کی رات اور کل کی رات بڑی اہم ہوتی ہے ایک الیکشن کے لیے، اور آج کی رات اور کل کی رات شیطان کی ناجائز اولاد یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان پر نظر رکھیے، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے، بلکہ آپ لوگ متحدہ طور پر جمع ہو کر ان لوگوں سے آپ جو بھی حاصل کریں گے وہ آپ کا مال غنیمت ہے۔ اب حضرت پولیس اور ایڈمنسٹریشن کیا کرتی میرے کو نہیں معلوم، مگر آج کی رات اور کل کی رات ہم تمام کو چوکس رہنا ہے، خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں کو، اور اس طرح کی حرکت اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ہم کو پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنا ہے۔
पहले लोकल पुलिस को इत्तला कर दीजिए और फिर उसके बाद आप उनकी फोटोग्राफी करिए। चौथी बात यह है कि मेरे को बताया गया कि बाज़ ऐसे गैर समाजी अनासिर हैं, ख़ास तौर से जो इम्तियाज़ जलील साहब की गाड़ी पर हमला किए, वो बेचारे गरीबों से कह रहे हैं कि तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड लाकर हमारे पास रखा दो। ये करना गलत है और वो लोग जो कर रहे हैं वो एक जुर्म है। और मैं उन लोगों को ही बता रहा हूं कि देखो, ऐसी आग की मत शुरुआत करो जिसको तुम नहीं बुझा पाओगे। तुम आवाम के मूड को समझो। ये जो तमाम मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में इम्तियाज जलील को हराने के लिए दुश्मनों के साथ होकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इम्तियाज जलील कामयाब ना हो। इम्तियाज जलील कामयाब नहीं हुए, ये हम तमाम का नुकसान है, ये महाराष्ट्र के मजलूम अवाम का नुकसान है, और सबसे ज्यादा नुकसान है भारत के मुसलमानों का। इन गद्दारों ने मिलकर, इनका निशाना यही था कि इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान कामयाब ना होने पाए। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील असदुद्दीन ओवैसी के साथ भारत की लोकसभा में मौजूद होते तो शायद नरेंद्र मोदी इस तरह का काला वफ का कानून नहीं बना पाते जिसके जरिए से मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया। ये वो लोग हैं जो हमेशा तारीख गवाह है कि जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं, मंजिल के करीब आते हैं, ये दुश्मनों के एजेंट बनकर हमारी कामयाबियों को रोकने के लिए उनसे साज़बाज़ करके आते हैं। फिर असेंबली का चुनाव आया, फिर इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी को रोकने के लिए इन जालिमों ने अपने ईमान का सौदा किया, अपने ज़मीर को बेच दिया। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे कि इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी जैसे लोग महाराष्ट्र की विधानसभा में अगर जाएंगे तो गरीब और मजलूमों की एक बेबाक आवाज होगी। आज फिर ये कोशिशें की जा रही हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि इन गद्दारों को उनके मकसद में कामयाब होने मत दीजिए। अगर आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, उसको जाय होने से बचाएंगे, तो हम इन गद्दारों को भी शिकस्त देंगे जो यकीनी तौर पर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के उस नापाक अज़ाइम को लेकर हमारी सफ़ों में आकर छुप कर बैठे हैं, जो शब खून करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा अपना एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। ये आपकी आवाज है। और पांचवी बात यह है कि बीजेपी ने, अजीत पवार ने, शिंदे ने, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने मिलकर एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए से वो मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीन सकते हैं। अजीत पवार अचानक अपने आप को सेकुलर दिखा रहे हैं। ये वो अजीत पवार है जिसने पार्लियामेंट में मोदी के साथ इस तरह का कानून बनाने की मदद की। मेरे भाई याद रखिए, अगर कोई इस कानून के बारे में नहीं जानता, मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाई के धर्म के स्थान होते हैं, वहां पर सिर्फ हिंदू भाई उसका मेंबर बन सकता है या बहन मेंबर बन सकती है। बौद्ध धर्म के उनके अहम मुकामात होते हैं, ऑफिस होता है,
वहां पर सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग मेंबर बन सकते हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कल तक सिर्फ मुसलमान मेंबर बन सकते थे। नरेंद्र मोदी और अजीत पवार ने, नीतीश कुमार, नायडू ने मिलकर ये कह दिया अब कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। ये क्यों किया? क्योंकि वक्फ के कानून में प्रोविजन है कि किसी भी जायदाद को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर कलेक्टर को लेटर लिख देंगे, ये वक्फ की जायदाद नहीं है। 100 साल पुरानी अगर मस्जिद, दरगाह होगी, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा, अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक आसार कदीमा बन चुका है। और कभी भी याद रखिए, दरगाह और मस्जिद को, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को बंद किया जा सकता है। बोलेंगे मस्जिद कमजोर है, दरगाह कमजोर है, जुमे के एक दिन आके नमाज पढ़ के चले जाओ। इतना गलीज और गंदा कानून बनाया गया सिर्फ हमारी इबादत गाहों को छीनने के लिए। और आपसे अपील कर रहा हूं कि जमहूरियत आपको, हमको एक मौका दे रही है कि ये कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। मेरी आप तमाम से अपील है, आप तमाम लोग गयूर हैं, बावकार हैं, बाइज्जत वाले हैं, मिली हमियत आपके दिल में कूट कूट कर भरी है। मैं आपको उसका वास्ता देकर कह रहा हूं कि इस इलेक्शन में पहले से ज्यादा आपको मजलिस को वोट देना है, ताकि हम बता दें बीजेपी को, बता दें बीजेपी के दल्लों को कि तुम्हारी साजिश औरंगाबाद में कामयाब नहीं होगी। और वोट पड़ेगा तो सिर्फ इत्तेहाद के नाम पर, पतंग के निशान पर पड़ेगा। वोट पड़ेगा तो सिर्फ इसलिए पड़ेगा कि मजलिस हमारी आवाज है। वोट पड़ेगा पतंग के निशान पर तो इसलिए पड़ेगा कि ये दल्लालों के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ, कफन चोरों के खिलाफ पतंग के निशान पर वोट पड़ेगा, जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। पतंग के निशान पर बटन दबेगा, इसलिए दबेगा कि हम उस पार्टी को वोट नहीं दे सकते, ना उसके नापाक मंसूबों को कामयाब होने देंगे जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दर्दमंदाना आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जमहूरी तरीके से अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, बीजेपी भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम बसें तैयार करके बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकालेंगे। कोई बांग्लादेशी नहीं है, अगर है तो नाकामी है नरेंद्र मोदी की। मुसलमान है तो बांग्लादेशी कहकर तंग करने की बातें की जा रही हैं। और एक और अहम वजह याद रखो, 15 तारीख को पतंग को वोट देना क्यों है? महाराष्ट्र में अभी SIR नहीं हुआ है। आपका नाम वोटर लिस्ट में है? कितनों का नाम है? हाथ उठाइए। SIR जब होगा तो हम बताएंगे, देखो हमने बल्दिया के इलेक्शन में वोट दिया था। अब SIR इस तरीके से हो रहा है कि एक गोवा के साबिका रुकने पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,